Hello students, in this class I will discuss about the spectroscopic term spectroscopic term symbols for the P2 configuration. Okay, so we have already known that in the P subcell there are 6 electrons are there. So in case of the P2, only the 2 electrons will occupy in the 3 orbitals. Okay, so how can we find out the term symbols of the P2 electronic configuration? और ये जो part हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, this part is very very important for the coordination chemistry portion, mainly for the Orgel diagram, which is in the part 3 syllabus and PG semester 2. Okay, so Orgel diagram, and another diagram is also there, which is known as the Tanabe-Sugano diagram, which is mainly in the MSc classes. Okay, so now I will discuss about the term symbols and in case of the P2 electronic configuration. So I think you guys know about the ground state term symbol. So in case of the ground state term symbol, mainly we are using this formula, that is 2s plus 1 Lj. This formula we are using for determining the ground state term symbols for any electronic configuration for P1 to 6 or D1 to 10 electronic configuration. So okay, so the total number of electron in the P subcell there, that is 6, and here we have only 2 electron. Look at the first line. Here we have written the total number of electron in P, that is 6, and here we have the 2 electrons. So how can we distribute that 2 electron in the 3 orbitals of the P subcell? How can we distribute these 2 electrons in the P subcell? So in the P, the possibility, that is the possibility of the total number of electron, that is 6. So we can write that is 6 factorial divided by that, here the number of electron is 2, so that is 2 factorial into 6 minus 2 factorial. So that is actually 6C2. Okay, permutation combination, I think you guys know about this. So I have to just find out, that is the value of the 6C2, and that comes, that is 15. So this 15, that is actually known as the microstates. Okay, this is known as the microstates for the P2 electronic configuration. So in case of the term symbols, we can explain the term symbols of any type of the electronic configuration mainly in 2 ways. Okay, first, that is by using the microstates, and the second is that is our group theory. So in this class I am discussing mainly about the microstates model. So how can we determine the term symbols by using the microstates model? Okay, so here the number of possibilities, that is 15. So इसमें 15 पॉसिबिलिटी है कि P2 इलेक्ट्रॉन, मतलब P2 को P सबसेल में अरेंज करने का, इसीलिए इसको हम लोग माइक्रोस्टेट्स बोल रहे हैं. सो वी कैन अरेंज द 2 इलेक्ट्रॉन्स इन P सबसेल इन 15 डिफरेंट वेज. तो अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम लोग कैसे ये जो P सबसेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन को 15 वेज में कैसे हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. ठीक है, इसको जस्ट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं. तो देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ, दैट इज़ द टोटल 15 माइक्रोस्टेट्स आर देयर. सो एट फर्स्ट आई हैव रिटन दैट इज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर in 1 and 0. What is 1, 0 and minus 1? That is the ML value, means the magnetic quantum number value, that is ML value. So that is our 1, 0 and minus 1. And we also know about the spin value, that is plus half and minus half. So for up spin that is plus half, and for down spin that is minus half. और magnetic quantum number का value क्या है? That is 1, 0 and minus 1. As because for P subcell the value of the azimuthal quantum number, that is L, is equal to 1. So M or ML that have 3 values, that is 1, 0 and minus 1.
तो ये एकदम क्लियर है, ये हम लोगों को एकदम बेसिक जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है उससे हम लोग लिख सकते हैं कि एम एल और एम एस वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पर मैं 15 वेज में देखो कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हूँ। तो फर्स्ट जो मैं लिखा हूँ दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल, जो हम लोग मेनली यूज़ करते हैं, जो हम लोग मेनली लिखते हैं P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो यहाँ पर एम एल का टोटल वैल्यू कितना हो रहा है 1 + 0 दैट इज़ 1, और एम एस का वैल्यू कितना हो रहा है प्लस ऑफ एंड प्लस ऑफ दैट इज़ 1। ठीक है, तो इसीलिए एम एल और एम एस में ऊपर में ऐसे करके इसका वैल्यू लिख रहा हूँ, तो इसका वैल्यू है 1,1। अगेन जो नंबर 2 में लिखे हैं इसमें जस्ट दोनों इलेक्ट्रॉन को मैं अप स्पिन से डाउन स्पिन कर दिया हूँ। तो एम एल का वैल्यू तो सेम रहेगा क्योंकि 1 + 0 दैट इज़ 1, बट एम एस का वैल्यू क्या हो रहा है माइनस अप दैट इज़ -1। नेक्स्ट नंबर 3 में देखो, एक को अप स्पिन किया हूँ, एक को डाउन स्पिन किया हूँ। तो एम एल का वैल्यू अगेन फिक्स्ड है दैट इज़ 1, बट एम एस का वैल्यू प्लस अप माइनस अप दोनों ऐड करके 0 हो गया। नेक्स्ट में भी सेम चीज़ किया हूँ, जस्ट उसको रिवर्स कर दिया हूँ। तो एम एल का वैल्यू और एम एस का वैल्यू इसलिए यहाँ पर किसी का कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट जो नंबर 5 में हम लोग दिखा रहे हैं दैट इज़ द माइक्रोस्टेट्स। इन नंबर 5 में देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन को हम लोग थोड़ा शिफ्ट कर दिया। फर्स्ट वाला जो मेरे पास ऑर्बिटल था उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट सेकंड और थर्ड में मैं इलेक्ट्रॉन रखा हूँ और दोनों अप स्पिन है। तो दोनों अप स्पिन है तो ऑब्वियसली एम एस का वैल्यू 1 हो गया, बट एम एल का वैल्यू क्या होगा 0 - 1 दैट इज़ टोटल इज़ -1। इन केस ऑफ 6 दोनों को डाउन स्पिन कर दिया तो -1 हो गया। इन केस ऑफ 7 आप स्पिन डाउन स्पिन कर दिया तो एम एल का वैल्यू -1 होगा, एम एस का वैल्यू प्लस अप माइनस अप मतलब 0 होगा, और नंबर 8 में भी -1 एंड 0 होगा क्योंकि इसमें जस्ट हम लोग रिवर्स किया। एट द सिमिलर वे नंबर 9 में हम लोग क्या किए हैं, बीच वाला जो ऑर्बिटल जो है मतलब जहाँ पर एम एल का वैल्यू 0 है उसको हम लोग ब्लैंक कर दिए, वहाँ पर मैं कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया हूँ। तो अभी क्या होगा, फर्स्ट में और लास्ट में है तो ऑब्वियसली एम एल का वैल्यू कितना होगा 1 एंड -1 दैट मीन्स 0, और एम एस का वैल्यू प्लस ऑफ 1। इसको उल्टा कर दो तो 0 - 1। फिर 11 में एक अप एक डाउन तो 0 0 होगा क्योंकि 1 - 1 एम एल का वैल्यू 0 होता है और एम एस का वैल्यू प्लस अप माइनस अप मतलब 0 होगा। 12 में भी 0 0 मिल रहा है। 13 में मैं किया हूँ कि दोनों इलेक्ट्रॉन को साथ में रख दिया। तो यहाँ पर मैं जो रूल को यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ अवर पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को हम लोग यूज़ करके दोनों इलेक्ट्रॉन को, एक को अप स्पिन किया हूँ और एक को डाउन स्पिन किया हूँ। तो ऑब्वियसली एम एल का वैल्यू 1 + 1 क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एम एल का जो 1 वैल्यू है उसमें ही है, वो वाला बॉक्स में मतलब वो वाला ऑर्बिटल में है, तो इसका वैल्यू 2 हो गया, बट स्पिन का वैल्यू प्लस अप माइनस अप करके 0 हो गया। नेक्स्ट 14 में क्या किया हूँ, फर्स्ट वाले को छोड़कर सेकंड में दिया हूँ, तो इसमें वैल्यू क्या है 0 0 है। ठीक है, एम एल का वैल्यू 0 है तो 2 इलेक्ट्रॉन 0 में है तो कितना होगा टोटल एम एल दैट इज़ 0, और एम एस का भी वैल्यू प्लस अप माइनस अप 0 हो गया। एंड 15 में भी लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एम एल का वैल्यू -1 दैट इज़ -2 और एम एस का वैल्यू 0। तो ये हम लोग मेनली क्या किया है, यहाँ पर हम लोग हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी को हम लोग ओबे नहीं किए हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाना कि कितना नंबर ऑफ पॉसिबल वेज है कि ये मैं P2 मतलब दोनों P इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर सकता हूँ इन द P सबसेल। तो मैं यहाँ पर देख लिया कि हाँ 15 वेज से मैं ये कर सकता हूँ, और ये 15 जो डिफरेंट वेज है इसको हम लोग माइक्रो स्टेट्स बोल रहे हैं। सो 15 माइक्रो स्टेट्स आर देयर इन केस ऑफ द P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर जो एम एल और एम एस लिखा हूँ ये एक्चुअली एम एल और एम एस वैल्यू है, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू और स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू है, बट ऑल आर इन द समेशन। ओके, मतलब समेशन ऑफ एम एल एंड समेशन ऑफ एम एस। इज इट क्लियर? आई थिंक ओके। तो हम लोग फर्स्ट क्या देखे हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 था, यहाँ पर 2 है तो 6 से 2 करके 15 आया और 15 माइक्रोस्टेट्स आए, तो इसको हम लोग दिखा दिए कि हाँ 15 वेज में इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं। अभी देखो मैं जो बोल रहा था दैट इज़ अबाउट द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल दैट इज़ अबाउट 2s + 1 Lj। यहाँ पर s क्या है, s को हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर बोल सकते हैं। एल क्या है, एल जो है दैट इज़ आवर जो समेशन ऑफ एम एल जो आ रहा है उससे अगर समेशन ऑफ एम एल करेंगे तो उससे मेरा कैपिटल एल आता है। और जे क्या है, एल और एस अगर कपल्ड हो जाता है दैट इज़ एल एस कपलिंग और द रसल सॉन्डर्स कपलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। एल और एस ये एक्चुअली दोनों वेक्टर क्वांटिटी होता है,
स्पिन इज दैट इज़ ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, एल दैट इज़ अवर एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है, तो इससे जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हम लोग आते हैं दैट इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी को अगर हम लोग समेशन करेंगे देन वी विल गेट द अनदर क्वांटम नंबर दैट इज़ जे, विच इज़ नोन एज मेनली द रसेल सॉन्डर्स कपलिंग। तो ये पोर्शन एक्चुअली हम लोग का बीएससी का जो पार्ट है उसमें है, तो इसलिए मैं इन डिटेल्स इसमें नहीं जा रहा हूँ। तो मेनली द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल हम लोग 2s+1 LJ से करते हैं। तो अभी इन केस ऑफ P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ L? P जब है, P का मतलब L का वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू है 1, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए L1 और L2 दैट इज़ 1 and 1। और एस का वैल्यू क्या होगा? एस का वैल्यू होगा प्लस अप, क्योंकि मैं ये केस को देख रहा हूँ जो आप लोग नंबर 1 में लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों रूल फॉलो कर रहा है, दैट इज़ पाउली भी फॉलो कर रहा है नंबर 1 में, और उसके साथ साथ हुन्स रूल्स भी फॉलो कर रहा है। तो इसीलिए फर्स्ट केस को मैं ले रहा हूँ और उससे L1 L2 S1 S2 मैं लिखा हूँ। अभी जब L1 L2 S1 S2 मेरे पास है तो कितना एस वैल्यूज़ हो सकता है? हाउ मेनी एस वैल्यूज़ आर देयर if I consider the P2 electronic configuration by obeying the two rules, that is Hund's rule and Pauli's rule, Pauli's exclusion principle. Okay, so number of S values ये जो होता है that is S1 plus S2 से लेके S1 minus S2। तो S1 plus S2 यहाँ पर कितना है? प्लस अप that is 1, और S1 minus S2 that is प्लस अप that is 0। तो कितने S values है यहाँ पर? पॉसिबल S values कितना है? 1 और 0, ठीक है। और एल वैल्यूज़ कितना होगा? एल वैल्यूज़ के लिए भी मुझे सेम वे में करना है, दैट इज़ L1 प्लस S2 से लेके L1 माइनस L2 तक। तो L1 प्लस L2 दैट इज़ अवर 1 + 1 दैट इज़ 2, एंड L1 माइनस L2 दैट इज़ 1 - 1 दैट इज़ 0। सो वी हैव टू टेक द वैल्यूज़ ऑफ L फ्रॉम 2 to 0, सो वी हैव 2 1 0। ओके, तो एज वैल्यू 1 0 होगा, एल वैल्यूज़ कितना हो रहा है? 3 हो रहा है, दैट इज़ 2 1 0। ये अभी हम लोग जानते ही हैं, जब हम लोग ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकाले थे तो इसमें हम लोग बोले थे कि हाँ एल का मतलब 0 1 2 3 है, तो इसके लिए SPDF होता है। अगर 4 होगा तो ऑब्वियसली G होगा, बट ऑल आर इन द कैपिटल लेटर। ओके, ऑल आर इन द कैपिटल लेटर। तो मैं अभी एक एक करके आ रहा हूँ। फर्स्ट अगर मैं एस वैल्यू को लेता हूँ, फॉर एस इज इक्वल टू 1, अगर एस का वैल्यू 1 है तो एल वैल्यू मैं 2 1 और 0 ये तीनों के लिए मैं एक एक करके लिख रहा हूँ। तो क्या होगा? 3D 3P 3S, ठीक है। जस्ट आई एम राइटिंग द वैल्यू ऑफ 2S + 1 L। ओके, जस्ट आई एम राइटिंग अप टू 2S + 1 L। आई एम नॉट राइटिंग हेयर द वैल्यू ऑफ द J। आई विल determine the value of J after when we get the values of the term symbols. Okay, so first we are considering only 2S + 1 L, इतना ही मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो उसके हिसाब से अगर S का वैल्यू 1 है तो 2S + 1 कितना है? 3 है, और L का वैल्यू अगर 2 है तो D होगा, 1 है तो P होगा, 0 है तो S होगा। तो S = 1 के लिए 3D 3P 3S हो सकता है, और जब S का वैल्यू 0 हो जाएगा उसके लिए 2S + 1 का वैल्यू 1 हो गया। L का वैल्यू कितना है? 2 के लिए D, 1 के लिए P, 0 के लिए S, तो 1D 1P 1S। सो देयर आर 6 पॉसिबल टर्म्स आर देयर फॉर द P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। So now out of these 6 possible terms in the P2 electronic configuration, all terms are not possible. Okay, so there are some rules, and by using these rules we can rule out the impossible terms from these 6 possible terms. Okay, तो ये जो 6 मेरे पास टर्म्स है, ये 6 टर्म्स कभी संभव नहीं है। तो इसमें से मैं अभी सर्च करूँगा कि कितना टर्म्स P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए संभव है। इसके लिए फर्स्ट जो रूल जो हम लोगों के पास है इसको हम लोगों को ओबे करना है, दैट इज़ हायर मल्टीप्लिसिटी एंड हायर एल वैल्यू से मैं लोअर एल वैल्यू तक जाऊँगा। ठीक है, तो हायर मल्टीप्लिसिटी किस में है? ऑब्वियसली ट्रिपलेट में है, क्योंकि 3 और एक है 1। सिंगलेट में तो हायर मल्टीप्लिसिटी नहीं है, तो हायर मल्टीप्लिसिटी मतलब 3 से 3 मुझे देखना है। और हायर एल वैल्यू मतलब 2 मतलब 3D
ठीक है। तो 3D से मुझे धीरे धीरे लोअर एल वैल्यू तक जाना है, ठीक है। तो हायर मल्टीप्लिसिटी एंड हायर एल वैल्यू से लोअर एल वैल्यू। तो फर्स्ट वी आर कंसिडरिंग द 3D, okay, because in 3D the higher multiplicity is there and also higher L value is there, so we are starting with the value of 3D. So if we take 3D, in case of 3D, what is the value of S? That is 1, and what is the value of L? That is 2, ठीक है। एस का वैल्यू 1 है और एल का वैल्यू 2 है। तो अभी देखो ये जो एस 1 और एल 2 हो गया, इसका मतलब समेशन ऑफ एस दैट इज़ 1 एंड समेशन ऑफ एल दैट इज़ 2, मतलब समेशन ऑफ एम एस दैट इज़ 1 एंड समेशन ऑफ एम एस 2। तो यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ, जो समेशन ऑफ एम एल समेशन ऑफ एम एस का जो भी मैं वैल्यू यहाँ पर दिखा हूँ इन द 15 माइक्रोस्टेट्स, यहाँ पर जो 2 और 1 का कोई वैल्यू है, कोई 2,1 कोई वैल्यू है, कोई भी वैल्यू तुम इसमें देख लो, कोई भी वैल्यू 2,1 में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, बट इन द माइक्रो स्टेट्स देयर इज़ नो 2,1, मतलब समेशन ऑफ एम एल दैट इज़ 2 एंड समेशन ऑफ एम एस दैट इज़ 1, तो 2,1 नहीं है, सो 3D इज़ नॉट पॉसिबल। तो 3D को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक हो गया। तो 3D को मैं रूल्ड आउट कर दिया कि हाँ 3D टर्म्स पॉसिबल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट मैं 1D में जा रहा हूँ, ठीक। 3D का नीचे देखो 1D लिखा हूँ, तो हाईएस्ट जो एल वैल्यू से मैं धीरे धीरे लोअर एल वैल्यू में जाऊंगा। तो हायर एल वैल्यू हायर एल वैल्यू 2 है, तो 2 के लिए 3D और 1D है। तो 3D में देख चुका हूँ, अभी मैं 1D में जाता हूँ। तो 1D के लिए देखो क्या हो रहा है। 1D के लिए एस का वैल्यू क्या है, 0, तभी ना 2s + 1 दैट इज़ 1 होगा, और एल का वैल्यू ऑब्वियसली 2 है। तो एस अगर 0 और एल अगर 2 है, ऐसा है देखो। तो और इसको हम लोग थोड़ा सिंपली मतलब इसको और थोड़ा डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब समेशन ऑफ एम एस 0 और एम एल जो होगा दैट इज़ एल का वैल्यू अगर 2 है तो एम एल का वैल्यू कितना होगा, जैसे हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में देखते हैं कि -L से लेकर +L तक इंक्लूडिंग 0, तो 2 1 0 -1 -2 ये चीज़ होगा। तो मेरे पास जो समेशन ऑफ एम एल और समेशन ऑफ एम एस जो मैं लिखा हूँ इन द 15 माइक्रोस्टेट्स, वहाँ पर देखो ये सब वैल्यू है या नहीं। तो 2,0 ये चीज़ है, ओके। 2,0 देखो यहाँ पर मैं इन द 13 में मैं लिखा हूँ 2,0, सो 2,0 इज़ देयर। देन 1,0, ओके। 3 नंबर में देखो है 0,0, 12 नंबर में देखो है -1,0, 7 नंबर में देखो है -2,0, देखो लास्ट 15 में है। तो ऑल द माइक्रोस्टेट्स आर पॉसिबल व्हेन द वैल्यू ऑफ एम एल इज़ 2 एंड द समेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एम एस दैट इज़ 0। तो ये इतना मतलब ऑल टोटल 5 माइक्रोस्टेट को डिफाइन कर रहे हैं 1D। तो ऑब्वियसली 1D इज़ पॉसिबल, ठीक है। 1D को मैं पॉसिबल मान रहा हूँ क्योंकि ये 5 माइक्रोस्टेट्स को डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं आता हूँ 3P में, क्योंकि मुझे हायर एल वैल्यू से लोअर एल वैल्यू में जाना है, तो मैं 3P में जा रहा हूँ। तो इन केस ऑफ 3P द वैल्यू ऑफ एस इज़ 1 एंड द वैल्यू ऑफ एल इज़ 1। तो एस अगर 1 है तो एम एस का वैल्यू कितना होगा, +1 0 -1, और एल का वैल्यू अगर 1 है तो +1 0 -1। तो 3 मतलब ऑल टोटल यहाँ पर मुझे मेरे पास 9 कॉम्बिनेशन आएगा, है ना, क्योंकि एम एस का वैल्यू 3 है, 3 एम एस वैल्यू +1 0 -1, और एम एल का वैल्यू 3 है दैट इज़ +1 0 -1। तो 3 × 3 दैट इज़ 9 पॉसिबल वैल्यूज़ यहाँ पर होगा। तो मैं एक बार इसको चेक करूँगा। सो यहाँ पर मैं लिखा हूँ, सो वी हैव टू फाइंड आउट द माइक्रोस्टेट्स ऑफ करके देखो। सपोज मैं एम एस वाला जो मैं एम एल वाला जो 1 है उसको मैं फिक्स कर लिया, तो क्या होगा 1 एम एस का +1, फिर एम एल का 1 एम एस का 0, फिर एम एल का 1 और एम एस का -1 ऐसा 3 वैल्यू आएगा। फिर एम एल का 0 ले लो, एम एस का 1, फिर एम एल का 0 एम एस का 0 एम एल का 0 एम एस का -1 एंड अगेन एम एल का -1 को फिक्स कर लो, फिर एम एस का 1 0 -1 ऐसे करके। तो यहाँ पर मैं 9 पॉसिबल जो माइक्रोस्टेट्स होना चाहिए इसको मैं ऐसे करके लिखा हूँ। तो अभी हम लोग को सर्च करना है कि ये चीज़ जो 15 माइक्रोस्टेट्स मैं ड्रॉ किया हूँ उसमें है या नहीं। तो 1,1 फर्स्ट में ही देखो
ये है मेरा नंबर 1 में है। नेक्स्ट 1,0 में देखो यहाँ पर 3 और 4 लिखा हूँ, तो 1,0 देखो 3 और 4 में है। बट इन केस ऑफ 1D मैं ऑलरेडी 3 को डिफाइन किया हूँ, ठीक है, 3 को डिफाइन किया हूँ, तो सेम माइक्रोस्टेट तो होगा नहीं, इसलिए मैं अभी नंबर 4 को ले रहा हूँ इन केस ऑफ 1,0। नेक्स्ट 1 - 1 नंबर 2 में देखो 1 - 1 है। फिर देखो 0 1 नंबर 9 में देखो ये होगा, नंबर 9 में देख लो 0 1 है। फिर 0 0 देखो नंबर 14 में ये 0 0 है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं ये और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि देखो और एक 1D में मैं 0 0 लिया हूँ जो मेरा नंबर 12 में है, तो अभी मैं इसीलिए 14 को ले रहा हूँ, मैं 12 को नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर 14 को ले रहा हूँ क्योंकि 12 ऑलरेडी 1D से मैं लिख चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो 0 - 1 कहाँ पर है, नंबर 10 में है। ओके, नेक्स्ट -1 1 कहाँ पर है, नंबर 5 में देख लो है। -1 0 यहाँ पर मैं 7 और 8 लिखा हूँ, -1 0 देखो 7 8 नंबर में है, बट 1D में फिर मैं 7 ले लिया था, तो अभी मैं नंबर 8 को ले रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं नंबर 8 को ले लिया, -1 लास्ट वन दैट इज़ इन नंबर 6। तो मैं देख रहा हूँ कि हाँ 1D तो पॉसिबल था ही, 3P के लिए भी जो 9 मैं माइक्रोस्टेट्स यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ ऑल आर पॉसिबल, क्योंकि ये सब माइक्रोस्टेट्स जो 15 है उसके अंदर से ही आ रहा है। तो इधर से जो 1D के लिए 5 और 3P के लिए 9 + 5 14 माइक्रोस्टेट्स हो गया मेरे पास। 14 माइक्रोस्टेट्स को मैं देख चुका हूँ, हाँ कि दीज आर पॉसिबल। सिर्फ एक ही माइक्रोस्टेट अभी बाकी है, ठीक है। तुम लोग थोड़ा सा जो मैं नंबर में यहाँ पर लिखा हूँ 13 3 12 7 15 ऐसे करके तुम लोग देख लेना कि अभी मेरे पास सिर्फ एक ही माइक्रोस्टेट बचा है, दैट इज़ इन नंबर 11, दैट इज़ 0,0। बाकी जो भी है ऑल आर डिफाइंड फॉर 1D एंड 3P, ठीक है। धीरे धीरे तुम लोग देख लो, 1D और 3P के लिए 14 माइक्रोस्टेट्स डिफाइन हो गया है, सिर्फ एक ही बाकी है जिसका ML और MS का वैल्यू है 0,0। तो यहाँ पर इसलिए मैं लिखा हूँ, सो ओनली 1 माइक्रोस्टेट इज लेफ्ट नाउ, दैट इज 0,0 इन नंबर 11। सो 3P जो अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द ग्राउंड स्टेट। ओके, इफ़ यू विल डू द 2s + 1 LJ, उससे मैं देख सकता हूँ कि 3P मेरा ग्राउंड स्टेट होता है। मैं बाद में फिर ये चीज़ देखूँगा। नेक्स्ट इन केस ऑफ 1P, क्योंकि मेरे पास अभी 3D 1D हो गया, 3P हो गया, नेक्स्ट कौन है 1P है। तो 1P के लिए क्या है, 1P के लिए ये कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि S का वैल्यू 0 है, बट P जब मैं लिख रहा हूँ तो L का वैल्यू हो जाता है 1, तो 0,1 होना चाहिए, बट यहाँ पर ओनली 0 0 लेफ्ट है, तो 1P संभव नहीं है। 3S में देखो, 3S में S का वैल्यू 1 हो रहा है, बट L का वैल्यू 0 है, तो 1 0 तो है नहीं, मेरे पास 0 0 है, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल ड्यू टू द अबव सेम रीज़न। बट इन केस ऑफ 1S में देखो S का भी वैल्यू 0, L का भी वैल्यू 0, सो MS और ML का वैल्यू 0 हो रहा है, जो मेरा नंबर 11 में है। इसका मतलब मेरे पास जो 6 टर्म्स था उसमें से सिर्फ 3 टर्म्स मेरे पास आ रहा है। एक तो है मेरे पास 1D, नेक्स्ट है 3P एंड द लास्ट वन इज़ 1S। सो आउट ऑफ 6 स्टेट्स और आउट ऑफ 6 मतलब एनर्जी स्टेट्स या टर्म्स, हेयर ओनली 3 इज़ पॉसिबल। कौन सा 3 है, एक है 3P, एक हो रहा है 1D और एक हो रहा है 1S। तो ऑब्वियसली ये जो 3 है इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 में है, तो ऑब्वियसली दैट इज़ आवर ग्राउंड स्टेट। तो ये जो तीनों जो मेरे पास टर्म्स आ रहा है इसमें से 3P का स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज मैक्सिमम, दैट्स वाई दिस इज आवर ग्राउंड स्टेट आउट ऑफ दिस 3, एंड 1D एंड 1S दीज आर द एक्साइटेड स्टेट। तो इसीलिए ओडगेल डायग्राम अगर तुम देखोगे तो वहाँ पर जब मैं P2 लिखता हूँ तो P2 के लिए मैं लिखता हूँ कि ग्राउंड स्टेट इज 3P एंड द अदर टर्म्स आर 1D एंड 1S, ठीक है। 1D एंड 1S, तो ये चीज़ कहाँ से आया, ये 1D और 1S वाला जो चीज़ है ये चीज़ मेरे पास कहाँ से आया, इसका ही एक्सप्लेनेशन मैं ये माइक्रोस्टेट्स मॉडल से कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया टर्म्स। अभी लास्ट ऑफ ऑल मुझे निकलना है टर्म सिंबल। तो टर्म सिंबल मैं कैसे निकल सकता हूँ, तो 3P मेरे पास है, तो जब 3P है, 3P में S का वैल्यू 1 है, ठीक ना, 3P में S का वैल्यू 1 है,
और P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू भी 1 होगा। तो J का वैल्यू कितना होना चाहिए, J का वैल्यू क्या होता है एक्चुअली L प्लस एस से लेके L माइनस एस, मतलब 2 से 0 तक होगा J का वैल्यू। और एक बार सुन लो, 3P के लिए S का वैल्यू 1, क्योंकि 2s प्लस 1 इज 3 हो गया। P का वैल्यू कितना होता है, देखो मैं यहाँ पर दिखाया था, P का वैल्यू कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। सो L का वैल्यू 1, दैट इज विच इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द P। तो L 1 हो गया, S 1 हो गया, तो J कितना होगा, L प्लस एस से लेके L माइनस एस, तो 2 से लेके 0, मतलब 2 1 0। इसीलिए देखो टर्म सिम्बल्स जो मैं लिखा हूँ, दैट इज 3p2 3p1 एंड 3p0, दीज आर द टर्म सिम्बल्स फॉर द 3p। नेक्स्ट 1D है, 1D में S का वैल्यू कितना है, 1D में S का वैल्यू ऑब्वियसली 0 होगा, तब ना 2s प्लस 1 1 होगा। और D जो है, D का मतलब हो गया, यहाँ पर L का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पर जो हो रहा है दैट इज 2 प्लस 0 से 2 माइनस 0। J का वैल्यू कितना होगा, L प्लस एस से लेके L माइनस एस, तो 2 प्लस 0 से 2 माइनस 0 मतलब 2, इसीलिए मैं 1D2 लिख रहा हूँ। और 1S जो है, 1S में भी S का वैल्यू 0 है, और S का मतलब जो कैपिटल S मैं लिख रहा हूँ, मतलब L का वैल्यू है 0, तो 0 प्लस 0 टू 0 माइनस 0, दैट वुड बी द वैल्यू फॉर द J, इसका मतलब 1S 0। सो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ अभी, इसका मतलब जो टर्म्स मैं लिखा था फॉर P2 कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज 3P, देन 1D, देन 1S, बट द टर्म सिम्बॉल्स जो है दैट इज 3p2 3p1 3p0, ये 3 हो गया, फिर 1d2 एंड 1s 0। सो द टर्म सिम्बॉल्स यू हैव टू राइट इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ द J। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग टर्म सिम्बल्स को आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज ये दिस क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द ओडगेल डायग्राम, क्योंकि ओडगेल डायग्राम में ये चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं। D1 D2 सिस्टम, D3 सिस्टम, D4 D10 तक जो भी सिस्टम होता है उसके लिए हम लोग ओडगेल डायग्राम यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर भी जैसे हम लोग P2 के लिए दिखाया हूँ, मैं ऐसे D2 के लिए भी कर सकता हूँ। ठीक है, D2 के लिए भी मैं ऐसे ही माइक्रो स्टेट्स निकाल के उसके बाद उसका टर्म्स एंड उसके बाद उसका टर्म सिम्बॉल्स मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो जस्ट मुझे क्या करना है, फर्स्ट 6C2 मतलब ये मैं प्रोसेस को यूज़ किया हूँ, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कितना इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से 6C2 मतलब 15 मतलब 15 माइक्रोस्टेट्स हो गया। उसके बाद उसको मुझे ड्रॉ कर लेना है 15 माइक्रोस्टेट्स, और उसमें ml का समेशन ऑफ ml और समेशन ऑफ ms कितना हो रहा है इसको पहले मुझे ड्रॉ कर लेना है। आसान हो गया। उसके बाद मैं एक एक करके एस का वैल्यू, एस वैल्यूज़ और एल वैल्यूज़ निकाला, और उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म सिम्बल्स निकाला। नेक्स्ट दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव टू टेक एट फर्स्ट हायर मल्टीप्लिसिटी एंड हायर एल वैल्यू, और उससे मुझे लोअर एल वैल्यू में जाना है। तो ऐसे करके मैं एक एक टर्म लिया हूँ और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एस और एल वैल्यू को भी मैं ले रहा हूँ, और उसको लेके मुझे देखना है कि कौन कौन माइक्रोस्टेट्स यहाँ पर संभव है और कौन कौन नहीं है। जो संभव नहीं है उसके साथ साथ उस टर्म को यहाँ से डिलीट कर दो, और जो संभव है उसको रखो। तो ऐसे ही करके 3D नहीं हुआ, 1D पॉसिबल हुआ, 3P पॉसिबल हुआ, उसके बाद हम लोग देखे 1P नहीं हुआ, 3S नहीं हुआ, बट 1S हुआ। तो ऐसे करके मेरा टर्म्स आ गया, और लास्ट में टर्म सिम्बल्स निकाले, जहाँ पर मेरे पास अगर एल और एस का वैल्यू है तो मैं जे का वैल्यू निकाल सकता हूँ। जे का वैल्यू हम लोग निकालते हैं एल प्लस एस से एल माइनस एस तक मुझे लेना है, तो ऐसे में जे का वैल्यू ईजिली निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही मैं टर्म सिम्बल्स और P2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकता हूँ। थैंक यू।